नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का आयोजन 10 से 13 जनवरी 2023 तक जयपुर में किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान पूरे देश के विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी G20 में भारत के नेतृत्व से लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और विशिष्ट सभा को संबोधित किया। मैं आशावान हूं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा, जो अवश्य ही हमारे देश और संसदीय व्यवस्था को अमृत काल में नई ऊर्जा देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स hold august offices. In this capacity, we are not stakeholders in politics. Primary concern of presiding officers is optimization of the contribution of elected representatives in parliament and legislature for welfare of the people. I am very particular about it. Those who hold high offices, they must take care that high constitutional offices are kept away from their political stance. We have noticed recently some serious observations that are transgressions. I would appeal to them to accord highest propriety to constitutional offices and not drag them into political arena. India is privileged to be heading G20 at a critical time. It is an opportunity to showcase capabilities of Bharat to the world. With such a sizable nation, the mother of democracy, such diversity and such potential, India has the chance to introduce itself to the world and demonstrate its power and prowess. This is going to be a milestone development. Today, we are in Amrit Kaal of our independence, on way to, and this is very critical for this conference in particular, laying firm foundations of what Bharat will be in 2047 when we celebrate centenary of our independence. Bharat is on the rise as never before. The world has acclaimed our COVID handling. Some of the recent milestones make us hold our head very high and in pride. In October 2022, India surpassed the United Kingdom. They were our rulers for long. We surpassed them to become the 5th largest global economy in the world. A great milestone and commendable achievement. By turn of the decade, we have no doubt, we will be the 3rd largest global economy. And friends, most recent development, we all talked when Suzuki car came to India, when we had its Maruti version. But very recently you would have seen India overtook Japan
in auto sales in 2022, moving to the third place for the first time in the world, an achievement we should all be proud of, a tribute to the skill and genius of Indian mind. Friends, we must believe in our achievements because our human genius is the basis of it. India has passed China. We have overtaken China to add most number of new unicorns startups valued at 1 billion or more. Startups and unicorns of fiscal dimension or 1 billion, we have overtaken China. This is an achievement as a result of perspiration, talent, commitment, direction of our people. Our rich human resource, skilled workforce, and affirmative government policies guided by the principle of more governance and less government contributed to a great growth trajectory that is continually upward. Inspired and motivated, and what the world has ever respected, our age-old ethos, Vasudhaiva Kutumbakam, we have given new mantra for sustainable development and inclusive prosperity of the world, and that was indicated by the Honorable Prime Minister. And look at the theme of it. One earth, one family, one future. We have followed it for thousands of years. We have given this mantra to the world, and 2023 will be a year fructifying it for global welfare. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं और व्यवधान का निदान खोजने पर जोर दिया। ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत विश्व में लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी अधिक जिम्मेवारी है कि प्रजातांत्रिक मूल मुद्दों को इसकी मौलिकता को हम हर तरीके से प्रिजर्व करें। करंट सिनेरियो इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स इज इंडीड अ कॉज ऑफ कंसर्न। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो वातावरण दर्शित होता है उसका जनता क्या आकलन करती है। यह समय है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। वी कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस वी डायग्नोज द डिजीज। डिजीज इज डायग्नोज्ड, समझ में नहीं आता हम उसका समाधान क्यों नहीं दे रहे। राजनीति से ऊपर उठकर देश भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान के एसेंस को दृष्टिगत करते हुए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, हमें सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पीठासीन अधिकारियों का मन बिल्कुल ठीक है, वो बेबस भी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा उत्तरदायित्व है सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं का है। मैं मानकर चलता हूं कि आपके मंथन के पश्चात उनको भी एक बहुत सार्थक संदेश जाएगा। आई एम श्योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स will bestow full attention and take lead. जैसे क्रिकेट में कहते हैं, play on the front foot with a straight bat. The temples of democracy, they should become centers of excellence. Decorum, sublimity. Members of parliament must exemplify by their conduct, virtuosity, sublimity, worth emulating. Democracy blossoms. Democracy survives
when legislature, the executive, and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem, so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते. You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect, and commitment to the Constitution. Dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र और उनके अधिकार को परिभाषित किया है. ये तीनों अंग संविधान की भावना के अनुरूप समन्वय से कार्य करें, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है. जब G20 का सम्मेलन हो रहा है, उस समय लोकतंत्र भारत की अवधारणा है, विचारधारा है, कार्यशैली है, और लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं. और इसीलिए 21वीं सदी के जो आकांक्षी भारत है, जो नया उदय भारत हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है. इस समय हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, उसको प्रभावी रूप से विश्व की संसदों के सामने भी और विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने भी रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा. जब हम लोकतंत्र की जननी भारत को मानते हैं, तो हमारी संसदें, विधानमंडल अधिक प्रभावी हो, उत्तरदायी हो और उत्पादकता युक्त हो. इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पर खरा उतरें और इन सदनों के माध्यम से जनता के अभाव, कठिनाइयों को समाधान करने का एक रास्ता निकालें. हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि 75 वर्ष के लोकतंत्र के परिपक्व होने के बाद भी आज हमें शालीनता, गरिमा की बात करने की आवश्यकता पड़ रही है. किस तरीके से सदन में शालीनता है, गरिमा है. हमारे जनप्रति जितने परिपक्व रूप से शालीनता, गरिमा रखेंगे, संवाद और चर्चा में उच्च कोटि की चर्चा, संवाद करेंगे. कानून बनाते समय व्यापक रूप से उसकी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे. लेकिन कानून बनाते समय, जब अध्यक्ष जी ने कहा कि कानून बनाते समय जो समय कम होता जा रहा है, कानून जिस तरीके से जल्दी से पारित हो रहे हैं, ये देश के लिए भी चिंता है और विशेष रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए विशेष चिंता का प्रश्न है. और इसीलिए इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हम हमारे विधानमंडलों की इमेज को अच्छा बनाएं, इनकी प्रोडक्टिविटी बनाएं, शालीन गरिमा को ठीक करें और अनुशासित, सार्वभौमिक तरीके से चर्चा कर एक प्रभावी लोकतंत्र की भूमिका को करने का काम करें. माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार स्पीकर कॉन्फ्रेंस में एक विजन दिया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म. और इस दिशा के अंदर भारत की संसद और राज्य की विधानमंडल मिलकर काम कर रही है. आने वाले समय के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर देश की संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उनकी कार्रवाई पूरी देश देख पाएगा. जो उनकी पुरानी डिबेट है, चर्चा है, कानून बनाते समय जो चर्चा हुई, उन सबको देख पाएगा, ताकि पूरे देश के अंदर एक साथ
एक प्लेटफॉर्म पर जब लेजिस्लेटिव का प्लेटफॉर्म होगा तो निश्चित रूप से हमें चर्चा करते समय, संवाद करते समय और जानकारी मिलेगी। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी विधानसभाओं ने अपनी अपनी डिबेटों को कंप्यूटराइज किया है और इसको हम लगता है कि इस 2023 के अंदर इस डिजिटल संसद के प्लेटफॉर्म को भी देश की जनता को समर्पित कर देंगे। संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। और जिन बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की और जिन विषयों को लेकर चर्चा की है उससे एक श्रेष्ठ परिणाम आएगा। मुझे उम्मीद है कि हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने का, उसको प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। ये सही है कि हमारे सामने आज अनेक चुनौतियां हैं, पर उनके समाधान ढूंढने के लिए फोरम सबसे उपयुक्त मंच है। पहले भी इस मंच ने ऐसे समाधान ढूंढे हैं, पर आज हमारे सामने जो इश्यूज हैं जिन पर हमने डिबेट पहले भी किया, कल भी जिन पर चर्चा की, सबसे पहला कि क्वालिटी डिबेट्स कैसे हों। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय सभापति राज्यसभा लगातार यह कोशिश कर रहे हैं सांसदों से परामर्श में, व्यक्तिगत बातचीत में, कि कैसे क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हम बहुत बेहतर बना सके, विधायिका की इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी कैसे सार्थक और प्रभावी हो। हमारी विधायिका पहले श्रेष्ठ और उच्च स्तर के डिबेट्स का मंच रही है। देश समाज को संवारने में हमारी वह गौरवमय भूमिका, वह गौरव और प्रेरणा देने वाली भूमिका कैसे पुनः हम साकार करें, यह हमारे सामने सवाल है। देश समाज को संवारने में हमारी भूमिका खासतौर से युवाओं को जोड़ने, राजनीति के प्रति विश्वास और आस्था का माहौल बने, यह हमारे लिए एक प्रश्न है। विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता मिले, इसका उल्लेख माननीय जोशी जी ने बहुत विस्तार से किया। बगैर डिसरप्शन के सत्र लंबे हों, यह भी चर्चा होती रही है। इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन रहे माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी की बात को मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आई कोट, public perception of the functioning of democracy is not only based on the quality of governance provided by the executive, but also on how far the proceedings in the House are relevant to its welfare. I urge you to do serious introspection and find out as to what in reality is the prevailing public perception. जो गांधी ने कहा कि स्वतः हम आत्मदीपो भव, हम खुद इंट्रोस्पेक्शन करें और रास्ता तलाशे कि मौजूदा चुनौतियों में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। जैसा मैंने उल्लेख किया, यह मंच शुरू से ही उन इश्यूज को डिस्कस किया है जो अपने समय के सवाल के रूप में हमारे सामने रहे और बहुत सारे सवालों का समाधान ढूंढा है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका समाधान हमें अभी ढूंढना है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम अब चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता मान्यवर, क्योंकि मुझे खुशी है कि आप विधानसभा के सदस्य रहे। मान्यवर, मुझे ये भी खुशी है आप संसद के सदस्य रहे। मुझे ये भी खुशी है कि आप भारत सरकार में मंत्री रहे। मुझे ये भी खुशी है कि आप राज्यपाल रहे और आप भारत के आज उपराष्ट्रपति हैं। तो मान्यवर, मैं क्या आपका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं करा सकता कि आर्टिकल 211 क्या है, आर्टिकल 212 क्या है, आउटरीच कैसे हो रही जुडिशरी की, किस तरह से हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि 75 साल बाद जुडिशरी ने जो निर्णय किए हैं उन निर्णयों के बारे में हमारा जो ओवररीच है एग्जीक्यूटिव का, हमारा ओवररीच जो विधायिका का है, ऐसे उदाहरण है कहीं जुडिशरी ने ओवररीच किया है, कहीं एग्जीक्यूटिव ने ओवररीच किया है, कहीं विधायिका ने ओवररीच किया है। आज समय आ गया हम आप उन सब चीजों को दोबारा देखें और किस ढंग से हम इसको बैलेंस को ठीक ढंग से बना सके, ये काम हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। लोकतंत्र कायम रहा, मजबूत बना, इसलिए आज न्यायपालिका स्वतंत्र, संसदीय प्रणाली जो है हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके हिसाब से देश में काम हो रहा है।
उतार चढ़ाव कई आए होंगे, कई मैंने सुना डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच एक बार, जब मैं शायद वो 50 साल हुए तो उसके उपलक्ष्य में था पार्लियामेंट के अंदर, तो कई बार कोशिश होती है कि किस प्रकार असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कैसा हम व्यवहार करें, किस प्रकार से अच्छे से सब बिजनेस हो, प्रक्रिया नियमों से चले, हाउस चले। और इसलिए मेरा मानना है कि स्पीकर की वास्तव में जिम्मेवारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है। किस प्रकार आप मैनेज करते हैं हाउस को, वो भी अपने में चुनौती होती है, जिसको आप सक्सेसफुल तरीके से निभाते हो, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जब सरकारें होती है, विपक्ष होता है, उन दोनों के बीच में संतुलन कायम रखना और अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखना कि आप जो निर्णय कर रहे हो वो निष्पक्ष है, ये काम रखना बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने होती है। और उस चुनौती का आप स्वीकार भी करते हो, उस चुनौती को आप निभाते भी हो, और उसी से हाउस की गरिमा बनी रहती है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी संदेश पढ़ा। मैं एक बार पुनः आप सबकी आज्ञा से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन में के राजस्थान विधानसभा जयपुर के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध करने में हमारी विधायी निकायों की भूमिका सराहनीय है। हमारे संविधान में हम भारत के लोग का भाव समाहित है, इसलिए हमारे हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा जुड़ा हुआ महसूस करे। हमने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है, हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े। ये संविधान की भी अपेक्षा है और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। संविधान के प्रहरी के रूप में विधायिका को सतत मजबूत करने में हमारे पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अहम है। समय के साथ बदलते विश्व के अनुरूप देश प्रगति की राह पर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में विधायिका के कामकाज में तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल से लेकर अनेक अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने तथा हमने लगातार ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे जन सामान्य के जीवन में सुखद और सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित हो। इस कड़ी में हमारी विधायिकाएं लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी कार्य प्रणाली में आधुनिक बदलावों के साथ देश की प्रगति में और मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। 21वीं सदी के भारत के लोगों की आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही है। इस आकांक्षी भारत के अनुरूप हमारी विधायी संस्थाओं से लेकर प्रशासन तक, हमारी व्यवस्थाओं को विधि और नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन से ज्यादा गतिशील, उत्तरदायित्व और लक्ष्योन्मुखी होना अनिवार्य है। आज के नए भारत के लिए हमें संस्थाओं को अधिक प्रभावी, कुशल और तकनीकी रूप से समृद्ध करते रहने की आवश्यकता है। देश की आजादी का अमृतकाल देशवासियों के लिए एक भव्य व विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए जी जान से कार्य करने का कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, जन भागीदारी की शक्ति के साथ राष्ट्र हित में कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम देश के विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन विभिन्न विधायी निकायों के द्वारा की गई उत्तम पहलों और नवाचारों को परस्पर साझा करने का एक सशक्त मंच है, जिससे सभी को इनका लाभ मिल सके। आशा है इस सम्मेलन में कई अहम विषयों पर सार गर्भित चर्चा होगी। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे केंद्रीय व राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारीगण और सचिवों को भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे, Member of Parliament, Leader of Opposition, Rajya Sabha. Honorable Speaker, I extend my sincere thanks for your kind invitation to the inaugural and valedictory session of the 83rd All India Presiding Officer Conference to be held in Jaipur, Rajasthan on 11th and 12th January 2023. As one of the three organs of the government, the legislature occupies a unique position in our parliamentary democracy. It is the parliament that guides and oversees the executive on one hand and conveys the intention behind our laws to the judiciary to guide it while dispensing justice. I do hope that the presiding officer conference would provide an opportunity for everyone to work towards ensuring the legislature regain its relevance. However, much as I would have wished to be a part of this important conference, I regret to inform you that due to pre-committed engagement on these 2 days, I would be unable to attend the conference. I wish all the success for the presiding officer conference. Warm regards, Mallika Kharge. भारतीय लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभों विधायिका और न्यायपालिका के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए,
इन सवालों को लेकर लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में विस्तार से विचार विमर्श होने की संभावना है। सम्मेलन के दौरान एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप से बचते हुए आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। जयपुर से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट लवकुश के साथ मैं कृति मिश्रा, संसद टीवी।